Assalamu alaikum. Actually, we completed histogram yesterday, or today we will do cumulative frequency graph. In fact, we will revise cumulative frequency graph. ये भी आपने O level में किया है. Histogram भी आपने की थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से जो end पे difference आ रहा था, मैंने आपको explain किया. So now we class boundaries different चीज थी और थोड़ी सी उसी की class boundaries की वजह से scaling जरा different हो जाती है. तो आज हम रिवाइज करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. Cumulative frequency graph. Suppose the data is marks x is greater than equal to 0, less than 5, greater than equal to 5, less than 10, greater than equal to 10, less than 15, greater than equal to 15, less than 20, greater than equal to 20, less than 25. Suppose the number of students whose marks are in between 0 and 5, they are 3, between 5 and 10, they are 11, between 10 and 15, they are 17, 15 and 20, 10, 4. Right? Okay, आपको यहाँ पे हमने cumulative frequency के topic में we need to learn 3 things. Number 1, how to construct cumulative frequency table. Number 2, how to draw the cumulative frequency graph. And number 3, how to read cumulative frequency graph.
ये 3 चीजें जो कि हमने करनी है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose मार्क्स आर बिटवीन 5 and 10, दे आर 11। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose मार्क्स आर लेस देन 10, वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose मार्क्स आर लेस देन 10। अब लेस देन 10 में 3 भी आता है और 11 भी आएगा। लेस देन 10 में दोनों आ जाएंगे। So 11 and 3 mean total number of students whose marks are less than 10, they are 14. Number of students whose marks are less than 15, वो कितने हैं? So less than 15 में ये सब आ जाएंगे, mean 3 plus 11 plus 17, which is 31. Number of students whose marks are less than 20, they are 41. Number of students whose marks are less than 25, they are 45. तासिम समझ आ रही है ना? So ये जो आप बता रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज आप बता रहे हैं, these are basically cumulative frequencies। यही cumulative frequencies हैं। तो आप एक और कॉलम ऐड कर दें जिसमें आप cumulative frequency लिख दें। बल्कि बेहतर ये कि आप साथ लिखें कि वो cumulative frequency शो क्या कर रही है। मीन एक और कॉलम में लिखें मार्क्स, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिखिए CF। CF मीन cumulative frequency। तो आप मार्क्स के कॉलम में मीन क्लियर करें कि ये अब आप क्या लिखना चाह रहे हैं। We want to write the frequency for x is less than 5, x is less than 10, x is less than 15, x is less than 20, x is less than 25। ये आगे cumulative frequency क्लियर कर रहा है कि less than 5 mean the cumulative frequency is 3। So less than 10, how many students are there? 14, 11 plus 3. Less than 15 means 17 plus 11 plus 3, 31. Less than 20 mean 41. Less than 25 mean 45. So this is the first thing कि आपको cumulative frequency table construct करना आना चाहिए। ये अगर कॉलम ना भी हो, डायरेक्ट cumulative frequencies लिखी हो, तो इसका मतलब आपको ये frequency आता है उस नंबर से लेस की। Okay, next is we want to now draw cumulative frequency graph। चलिए cumulative frequency graph अब ड्रॉ करते हैं हम। Okay, now on y-axis what should be labeled? Y-axis पे क्या लेबल होना चाहिए? Cumulative frequency। ठीक है समीर? तो y-axis पे cumulative frequency आएगी और x-axis पे marks। What should be the scale on x-axis? 1 centimeter represents 5 units. So 0, 5, 10, 15, 20, 25। Okay, y-axis, अगर आपके पास 9 डिवीजन हैं तो आप 5 का स्केल ले लें, और अगर आपके पास 9 डिवीजन नहीं है तो आप 10 का, अगर आपके पास कम है तो फिर आप 10 का स्केल ले सकते हैं। सो मैं ले रहा हूं 10 का स्केल।
ओके जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को अब हमने प्लॉट करना है। बताइए, प्लॉट करने के लिए ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये उस इंटरवल की लोअर वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट होना चाहिए, मीन 0 के अगेंस्ट। अपर वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट होना चाहिए, मीन 5 के अगेंस्ट। या मिड वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट होना चाहिए, 2.5 के अगेंस्ट। अपर वैल्यू के अगेंस्ट, बिकॉज दीज आर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मीन लेस देन 5 आपकी फ्रीक्वेंसी इज 3। सो अपर वैल्यू के अगेंस्ट सब फ्रीक्वेंसीज प्लॉट होगी, दीज आर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो लेस देन 5 आपके पास 3 है, लेस देन 10 is 14, less than 15 is 31. So all the points on the graph for the cumulative frequency should be plotted against the upper value of each interval. So against 5 you will plot 3. So somewhere here is 3. Against 10 it is 14. So plot the point for 10 against 14. Against 15 it's 31. Against 15 it's 31. Then 20 के against 41. So 20 के against 41. And against 25 it's 45. इन सब पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है? स्ट्रेट लाइन से या कर्व से? ओ लेवल में कैसे करते थे? वो तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती जो आप कह रहे हैं। ओ लेवल में कर्व से करते थे आप। मीन आपका पेपर में क्वेश्चन ही होता था ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। सो ये कर्व से ड्रॉ होनी चाहिए। लेकिन कुछ मार्किंग स्कीम्स मैंने देखी है जिसमें उसने अलाउ किया हुआ है कि अगर आपने इसको स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन किया हुआ है, मीन स्ट्रेट लाइन, मीन लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। एक बात कि आपको अगर लिखा हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करें, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको कर्व भी ड्रॉ करनी चाहिए। और अगर ग्राफ के तो आपके पास कर्व और लाइंस दोनों की ऑप्शन है, बट आई विल रिकमेंड कि आप कर्व ही ड्रॉ करें। सो इन सबको ज्वाइन करें और एक स्मूथ कर्व बनाइए। So this is the cumulative frequency graph. This value is 45 and here it is 25. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो ग्राफ है इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, मैंने 0 0 से स्टार्ट कर लिया है। समटाइम्स क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे आपको पता चले कि ग्राफ 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? मीन अगर मैं आपको ये बता दूं कि देर आर टू स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 हैं। अभी तो 0 के अगेंस्ट 0 शो हो रहा है ना, ऐसे ही है ना, 0 के अगेंस्ट 0, 0 0 मीन्स अगर मैं ये आपको बता दूं, कोई ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि देर आर टू स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 0, सो टू स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 हैं, तो वो पॉइंट यहां पे आएगा ना।
तो आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? वो वाई एक्सिस से 2 से स्टार्ट होना चाहिए। देयर आर, फिर वो यू इस तरह ग्राफ बनना चाहिए। देयर आर 2 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 0, मीन 2 स्टूडेंट के बारे में तो कंफर्म है कि उनके 0 है, तो 0 मार्क्स के अगेंस्ट 2 स्टूडेंट शो होने चाहिए। तो इस केस में ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ जी। अब एक और केस, अगर मैं आपको ये बता दूं कि 0 मार्क्स किसी स्टूडेंट के नहीं है, 1 मार्क भी किसी स्टूडेंट के नहीं है, और 3 से 5 के दरमियान आपके 3 स्टूडेंट्स हैं। मीन यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 से 5 के दरमियान 3 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं अगर आपको क्लियर कर दूं कि 0 मार्क्स भी किसी का नहीं है, 1 भी किसी का नहीं है, 2 भी किसी का नहीं है, 3 और 5 मार्क्स के दरमियान 3 स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपको कंफर्म हो गया कि 0 मार्क्स किसी का नहीं है। मीन आपका ग्राफ स्टार्ट ही 3 से होगा, ऐसे ही है। सो 3 से स्वैप कर फिर ऐसे ही बन जाएगी कुछ। तो उसके इसमें भी ओरिजिन से ग्राफ नहीं स्टार्ट होगा। सो ये थोड़ा सा केयरफुल होना है। मीन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी तो नॉर्मली वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, बट अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिसके पता चलता है ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो, उसके मुताबिक वर्किंग करें। हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि 0 स्टूडेंट, 0 मार्क का कोई स्टूडेंट नहीं है, 1 मार्क का कोई स्टूडेंट भी नहीं है, मीन 2 मार्क्स तक किसी ने कोई ऐसे स्टूडेंट है ही नहीं। सो 3 मार्क्स से ऑनवर्ड ग्राफ स्टार्ट होगा। हाँ जी, ऐसे ही मैंने कहा ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लियर करेगा। अभी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी ना, तो इतना मैंने आपको बता दिया था कि 0, 1 और 2 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन 3 और 5 के दरमियान मैंने आपको बताया वो 3 के बारे में नहीं पता। तो इसलिए एटलीस्ट 0, 1, 2 पे ग्राफ तो नहीं है। तो फिर तो आपका इसका मतलब वो मिडिल से दरमियान से स्टार्ट होगा ग्राफ। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसी दी होगी, एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इससे आपको पता चल जाएगा ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, या कहीं हवा से स्टार्ट। अच्छा, ठीक हो गया। ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बन गया। अब नॉर्मली ओ लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें ग्राफ को रीड करना होता था। नाउ वी विल रीड द ग्राफ। ओके, सपोज द क्वेश्चन इज find the number of students whose marks are less than 18. Use your graph. The question is use your graph to find the number of students whose marks are less than 18. जी 18, दिस इज 18। तो 18 के अगेंस्ट आप देखेंगे इस तरीके से, and you will see कि what is the number on the y-axis. If it is 38, so आप बता देंगे, so the number of students whose marks are less than 18, they are 38। अच्छा, जब कभी आपको कहते हैं ना यूज योर ग्राफ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, उस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं? आप में से कुछ लोग ये करते हैं कि ग्राफ के ऊपर सिंपली एक 2018 से वो अपनी फिंगर स्टार्ट करते हैं, ग्राफ तक लेके जाते हैं, फिर लेफ्ट फिंगर लेके जाते हैं और देखते हैं नंबर क्या बन रहा है 38, और आंसर लिख दिया 38। कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो स्केल से बाकायदा वो ड्रॉ करते हैं, जिस तरह ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है 18 से लेकर ग्राफ तक और फिर उधर तक। कौन सा बेहतर है? सेकंड। आपका पेपर में जो क्वेश्चन वो कहेगा कि यूज योर ग्राफ, उसकी मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे उसने आंसर के साथ एक कंडीशन लगाई होगी कि एविडेंस शुड बी क्लियरली सीन ऑन द ग्राफ। कि आपने ग्राफ यूज किया है, उसका एविडेंस ग्राफ पे शो होना चाहिए। और ये एविडेंस क्या है? ये जो आप लाइन ड्रॉ, ये है एविडेंस। अगर आपने मेंटी लिख दिया है तो चांसेस काफी है कि आप मार्क्स यूज करेंगे, और अगर वो मेथड मार्क हुआ तो इसका मतलब 2 मार्क्स आपको दोनों के। So number of students whose marks are less than 18, they are 38. Okay, अब बताइए number of students whose marks are more than 18. So more than 18 mean now I am talking about this graph.
सो अभी भी 18 को आप ग्राफ में देखेंगे और देखेंगे 38 बन रहा है और टोटल कितने हैं 45। सो 45 में से 38 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 7। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are more than 18, they are 7। अच्छा, जब ग्राफ यूज करें फिर उसके साथ इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू एक्यूरेट आंसर तो वैसे भी नहीं आ रहा होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ओके कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बताएं, तो लेस देन इक्वल टू 18 बताएं, तो वो उसका सेम ही आंसर होगा, लेस देन 18 का या लेस देन इक्वल टू 18 का। ओके, अब बताइए कि if the question is find the number of students whose marks are at at least 18, find the number of students whose marks are at least 18। कासिम जाग रहे हैं? बताइए हम। लेस देन 18, आप जाग रहे नहीं है। मैंने क्वेश्चन में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are at least 18। थोड़ा सा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90 आने चाहिए, क्या मतलब होगा इसका? आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90 आने चाहिए। सोचें जरा, इसका क्या मीनिंग है? 90 या 90 से ज्यादा है, ऐसा है या नहीं? हो सकता है नहीं यार, इसका मीनिंग क्या है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो ओके, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट डज इट मीन इफ आई से यू शुड गेट एटलीस्ट 90 मार्क्स? 90 या 90 से ऊपर। गॉट इट? सो हियर इट सेज कि योर find the number of students whose marks are at least 18। so at least 18 मीन 18 या 18 से ज्यादा ये स्टूडेंट्स हैं। तो ये कितने हैं? 7। और अगर समीर से कहा जाए कि योर मार्क्स शुड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are at most 18, 18 या 18 से कम, तो वो यही वाला ग्राफ है। आप डायरेक्टली 18 को थर्ड देखेंगे, द आंसर इज 38। ओके, इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं अबाउट परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, आते थे ना? इफ द क्वेश्चन सेज फाइंड उसी के साथ है ये, वहां स्पेस नहीं है, मैं अब आगे कर रहा हूं, वापस जाऊंगा। द क्वेश्चन इज फाइंड 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। जी कैसे करेंगे 30th परसेंटाइल? 30th percentile mean 30%। 30% mean 30 over 100। 30% of what? 30% of total frequency। समेशन f का मतलब क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट्स अ टोटल फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इट वाज 45। सो आप 30th परसेंटाइल मीन 30% ऑफ 45 फाइंड कीजिए। क्या नंबर बन रहा है? 13.5। 38% of 45 is 13.5। Is that the answer? No। किसके बीच में होगा? ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। फाइंड 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स मेंशन भी ना किए करे, याद रखिए ये परसेंटाइल्स के आंसर्स हमेशा एक्स एक्सिस पे होते हैं। ये आपने टोटल स्टूडेंट का 30% जस्ट फाइंड कर दिया है।
आपको ये बताना है कि 30% स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितने लिए। 30% स्टूडेंट्स कितने बनते हैं? 13.5। तो अब आप ग्राफ यूज करेंगे 13.5 के अगेंस्ट, दिस इज 13.5। तो आप देखेंगे 13.5 के अगेंस्ट नंबर क्या बन रहा है। 10 से थोड़ा सा कम, 9। इट इज 9। सो आपका आंसर होगा 9। 9 व्हाट? 9 मार्क्स। अच्छा, इसका मीनिंग फिर क्या हुआ? व्हाट डज 30th परसेंटाइल मीन? 30th परसेंटाइल का मीनिंग ये है कि 30% स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। सो 30% स्टूडेंट्स ने 9 मार्क्स लिए। तो जब भी आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, परसेंटाइल का आंसर आपका एक्स एक्सिस पे होगा, फाइनल आंसर। चलिए एक और परसेंटाइल कैलकुलेट कर लें। इफ द क्वेश्चन इज फाइंड 70th percentile, if the question is to find 70th percentile, so the same procedure. First find 70% of total frequency. What's the total frequency? 45. 31.5 is not the final answer. ऐसे ही है। हम क्या करेंगे? 31.5 को ग्राफ में देखेंगे। So it is approximately it is 16. So 31.5 को ग्राफ में देखा, it is 16. So 70% स्टूडेंट्स ने 16 मार्क्स दिए। So 70% students obtained 16 marks. Got it? So ये हो गया परसेंटाइल। ओके, अब आगे हम करते हैं। आई होप आपको याद होगा, आपने ओ लेवल में मीडियन वगैरह भी किया था, लोअर क्वार्टाइल भी किया था, अपर क्वार्टाइल भी किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी किया था। या 70% स्टूडेंट्स गॉट 16 और लोअर मार्क्स। जी अहमद। हम सर, आप एक सेकंड पीछे करेंगे, एक चीज पूछनी थी मैंने। सर वो थोड़ी आवाज आपकी कट रही थी सर। 70/100 टाइम्स 45 करके 31.5 तो आ गया, लेकिन 16 फिर किस तरह है? ये 31.5 आए हैं स्टूडेंट्स में से 45 का। सो 31.5 यहाँ पे था, उसको ग्राफ में देखना है। और मार्क्स हमेशा आपके एक्स एक्सिस पे होते होंगे। मीन ओके जितने भी सर। परसेंटाइल हैं उनका फाइनल आंसर आपका एक्स एक्सिस पे होगा हमेशा, जितने भी परसेंटाइल हैं। और इवन आगे हम जो क्वार्टाइल्स भी करेंगे उन सब के फाइनल आंसर्स एक्स एक्सिस पे होंगे। ओके सर। ओके, समीर कहाँ बिजी हैं आप? 2 दिन तो हम आए नहीं, और आज हम हैं इसी तरह सब ले रहे हैं आप। और आज मैं तो आज का कंसर्न हो जाता। अच्छा, हाँ हाँ, वो बड़े जरूरी हैं यार, उनका रिप्लाई ना करो तो नाराज हो जाते। बिल्कुल पढ़ाऊंगा। कौन सी छुट्टियां? फरवरी में कोई छुट्टियां करता है आज? इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होगी ना। अच्छा जी, आपका डेटा अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, जरा सुनिएगा।
अगर डाटा यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस वैल्यू को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ये मिडल में जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? मीडियन। आपका मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो फर्स्ट हाफ है, उस फर्स्ट हाफ के मीडियन को क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल। आपका मीडियन आपके डेटा को 2 हाफ में डिवाइड करता है। जो सेकंड हाफ का मीडियन मिडल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल। व्हाट इज रेंज ऑफ एनी डेटा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस minimum value. What is IQR? What is interquartile range? Upper quartile minus lower quartile. ऐसे ही है। मैं वापस चलूंगा उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से समटाइम्स वो पूछता है कि व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल, व्हाट इज अपर क्वार्टाइल। इंटरक्वार्टाइल रेंज। IQ level of every interquartile range। अच्छा जी, अब उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से समटाइम्स आपको मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए कहता है। बताइए, अगर लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए कहे, फाइंड कर लेंगे ना लोअर क्वार्टाइल इंशाल्लाह। और मीडियन अगर कहे, और अपर क्वार्टाइल। आपको मुझे ये बताइए, परसेंटाइल फाइंड करने आते हैं? अभी किए हैं ना हमने। इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल बताइए, मीडियन कौन सा परसेंटाइल होता है? 50th परसेंटाइल। सो आप जस्ट 50th परसेंटाइल फाइंड करें, दैट विल बी मीडियन। लोअर क्वार्टाइल इज 25th परसेंटाइल। सो जस्ट फाइंड करें 25th परसेंटाइल, वो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। या 25% इज बेसिकली वन फोर्थ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। एंड अपर क्वार्टाइल, विच परसेंटाइल इज दैट? 75th परसेंटाइल। सो अपर क्वार्टाइल इज 75th परसेंटाइल। चलिए अब कोई कैलकुलेट करके देखते हैं जल्दी से। हम मीडियन कर लें, बल्कि सारे कर लेते हैं। अगर मीडियन अगर करना हुआ, मीडियन इज 50% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। वो क्या बना था? 50% ऑफ 45 इज 22.5। इज दैट द फाइनल आंसर? नो, फाइनल आंसर विल बी ऑन एक्स एक्सिस। तो आप उस ग्राफ में 22.5 के अगेंस्ट नंबर देखिए क्या बन रहा है। 13। तो अगर आपके ग्राफ के मुताबिक 13 आ रहा है तो 13 लिख दीजिए, 14 आ रहा है तो 14 लिखिए, अपने ग्राफ के मुताबिक लिख लीजिए। सो 13। लेट्स फाइंड lower quartile. Lower quartile is 25% of 45. 25% mean one fourth of 45. One fourth of 45 is 11.25.
आपको आपके पास ग्राफ पेपर में बना होगा तो जितना एक्यूरेट होगा आप ट्राई करेंगे। चेक करें 11.25 को ग्राफ में क्या नंबर बनता है। 8। okay, against 11.25 it is 8, so lower quartile is 8 marks. Then find upper quartile. Upper quartile is 75% of 45. It is 75% of 45 is 33.75. so आप 33.75 को ग्राफ में देखेंगे। 33.75 को ग्राफ में देखा तो आपके पास आ रहा है 17, so approximately it is 17, so this is 17. And finally, what is IQR interquartile range? It's upper quartile minus lower quartile, 17 minus 8, which is 9 marks. So interquartile range find करते हुए अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, हम माइनस पहले कर देते हैं। 75% में से 25% माइनस किया, वो 50% आ गया, 50 मीडियन होता है, वो मीडियन आ जाएगा। तो याद रखिए इंटरक्वार्टाइल रेंज की कैलकुलेशन करते हुए आपने लोअर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर एक्स एक्सिस पे देखना है, अपर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर एक्स एक्सिस पे देखना है, उनके फाइनल आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यू विल गेट इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ग्रुप्स पे नजर रखिएगा ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि फेस इधर तो क्लास नहीं होगी, जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।